So in this video we'll talk about organic farming versus natural farming. And of course when we talk about organic natural, then chemical also comes in picture, right? So pehle see, when I started gardening, definitely I started with the organic gardening, even not chemical one. So the point is, why chemical gardening, chemical farming, what is the problem, and why someone like nowadays we are mostly talking about organic farming, organic gardening, right? So but why not chemical one, right? I have heard on the internet some people says, okay, hey, chemical is very negligible, it doesn't affect the human body like that, right? So I don't agree. यूरिया को आप थोड़ा सा आप खा लो, इवन माइक्रोब्स, इवन आई हैव सीन इन माय चाइल्डहुड, लाइक वो उसको अर्थवर्म्स के ऊपर थोड़ा सा एक बूंद ऐसे डाल दो तो वो मर जाता है। हम लोग प्ले करते थे उसके साथ, राइट? तो और ऐसा क्यों बोलते हैं, मतलब वो केमिकल जो स्प्रे करते हैं पूरा मास्क डाल के करते हैं, मतलब वो इतना डेंजरस होता है। और वो मतलब स्लो पॉइजन है एक्चुअली। तो chemical, no chemical, definitely it's like definitely going to impact, no doubt, right? So of course now the people kind of who was kind of uh, started looking for alternative solution, what could be the best that is possible without chemical one, right? So the people shifted to organic. And what is organic? Organic is something like, hey, government kind of approves, hey, this is the product that is organic, and now you can get this product. Did you understand? So okay, let me explain. So government says, hey, this is the neem oil, this is organically approved, you can use for your plants. This is organically grown fruit, you can use, definitely, of course this is for consumer, it's fine. I'm talking about the gardeners or farmers, right? So for them, earlier they used to purchase chemical compost, chemical pesticide, etc. Like for example, urea, DAP, and उसके बाद imidacloprid. I don't even know all those, but they used to purchase lot of sprays. All sprays, mostly compost. I know, natural means this urea, DAP. तो बाद में मतलब जो एक अप्रूव्ड इनपुट्स हुआ कि आप जो है उसकी जगह पे वो डेंजरस है, उससे कैंसर होता है, ये है केमिकल से, यू यूज़ वर्मी कंपोस्ट दैट वी हैव डेवलप्ड फ्रॉम अर्थवर्म्स, राइट? एंड इसको यूज़ करो, दैट वुड बी द ऑर्गेनिक एंड इट वुड बी गुड फॉर हेल्थ। ओके, दैट्स फाइन। फार्मर ने स्टार्ट किया, वर्मी कंपोस्ट लिया, जो है तुम्हारा बोन मील लिया, और बहुत सारे क्रिस्टल्स ये वो बहुत सारे मिलते हैं, जैसे तुम्हारा नीम पाउडर हो गया, तो काइंड ऑफ इवन राख तक बिकती है, काउडंग मतलब जो भी है वो सारी चीज़ें जो है बिकना शुरू हो गई, ऑर्गेनिक इनपुट्स। एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड टू बाय दैट फ्रॉम द मार्केट एंड यूज इन आवर सॉइल, राइट? बट सो फार्मर को एडवांटेज क्या हुआ, राइट? पहले फार्मर ने 100 रुपीज़ स्पेंड किया टू बाय फर्टिलाइज़र फॉर यूरिया, DAP, लेट्स से, and after that once government kind of or like the people get awareness, they started, hey, like वो तो dangerous है, now they have started using organic input, and now they are spending literally 200 rupees for organic inputs. Did you understand the problem? पहले we were getting those fertilizer, spray, all those things to grow the fruit for 100 rupees, but now we are paying 200 rupees, and literally it's true. वो सब्सिडाइज भी होता था, ये तो सब्सिडाइज भी नहीं है क्योंकि देखो इनपुट जो यूरिया, DAP का कॉस्ट से ज़्यादा ही था, लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर रखा है फार्मर्स के लिए, वो 100 में मिलता था, अभी ये 200 रुपीज़ हो गया।
तो फार्मर का, गार्डनर का तो इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, और आउटपुट तो वैसे भी जो है बोलते हैं कि ऑर्गेनिक में कम आएगा, लिटरली हो सकता है इनिशियली कम आए भी, तो आपका आउटपुट कम हो गया, इनपुट ज़्यादा हो गया। हाँ, आपके हेल्थ के लिए जो आप खाए ऑर्गेनिक से ग्रो करके, वो ठीक है, वो अच्छा है, चलेगा वो, राइट, बट इज़ दिस सस्टेनेबल? ये वाला मॉडल, श्रीलंका वाला मॉडल आपने सुना होगा, राइट, कि वहाँ पे फेल हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग फेल हो गया। अरे क्या ही बात कर रहे हो यार ऑर्गेनिक फार्मिंग की, राइट। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द बिगर प्रॉब्लम। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका है इनपुट एक अप्रूव्ड, बोलते हैं ये अप्रूव्ड है, सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेशंस भी है, राइट। वो सब चीज़ें जो है आपकी हर जगह पे आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है और आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। आउटपुट वाइज आई बिलीव इट इज़ फाइन, डेफिनेटली ह्यूमन कंजप्शन के लिए दैट इज़ फाइन, दैट इज़ गुड। जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए तो कुछ भी फ़र्क नहीं है, अगर चीप में मिल गया तो अच्छा है, लेकिन इन जनरल आप देखोगे तो ऑर्गेनिक का कॉस्ट भी जो है ज़्यादा होता है। दैट इज़ द बिगर प्रॉब्लम आई थिंक कंज्यूमर्स आर फेसिंग, एंड इवन द फार्मर आर फेसिंग while प्रोड्यूसिंग द थिंग, बिकॉज द इनपुट कॉस्ट भी ज़्यादा ही हो गया, राइट। नाउ then what is natural farming, right? So natural farming is something mimicking the nature. And what is the nature? Nature you can see in the jungle, right? जंगल को फॉलो करो। जंगल में क्या होता है, बड़े पेड़ होते हैं, बिग ट्रीज, देन मीडियम, स्मॉल, हाउ दे आर काइंड ऑफ डेवलप्ड, हाउ दे आर सेटल्ड देयर। बड़ा पेड़ है, बड़े पेड़ के नीचे मीडियम वाले हैं, फिर छोटे वाले हैं, उसके नीचे बुशेस हैं, फिर कवर क्रॉप है। दैट इज़ द नेचुरल, दैट इज़ द नेचर दैट वी हैव टू ट्राई टू मिमिक ऑन आवर सॉइल। ओके, सो लेट्स ट्राई टू मिमिक द वन थिंग। फॉर एग्जांपल ये बड़ा ट्री हो गया, ये वाला कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये हमारा बड़ा ट्री हो गया, मेरे केस में ये करौंदा, सपोज करो बड़ा ट्री हो गया। अब बड़े ट्री के अंदर छोटा ट्री मतलब ये देखो हमारा जैसे ये आ गया यहाँ पे, इसके बाद छोटा ट्री मतलब हमारे केस में तो अभी हम एकदम पास में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये देखो टोमेटो भी ग्रो हो रहा है यहाँ पे, कवर क्रॉप हमारा धनिया मेथी पालक यहाँ पे ग्रो हो जाएगा। तो हाँ, तो वहाँ से हमको क्या सीखने को मिला जंगल से, कि मिट्टी पूरी कवर्ड है, लीफ से कवर है, राइट। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, मल्चिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम फार्मिंग की बात करें, क्योंकि फार्मिंग में क्या होता है कि हमको देखो जंगल में इन जनरल क्या होता है कि आपका फंडा आप पूरा मिमिक करोगे, दैट इज़ फाइन, बट प्रोडक्शन आपको बहुत ज़्यादा लेना होता है राइट आप मिमिक कर रहे हो, आप ओरिजिनल भी नहीं हो, लेकिन आपको प्रोडक्शन और ज़्यादा ही चाहिए, दैट इज़ द कैच अगेन। तो उसके लिए आपको एक थोड़ा सा गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा, बट यू हैव टू मिमिक दैट। द पॉइंट इज़ ओके, फर्स्ट थिंग इज़ मल्चिंग योर soil should be covered, it should not be naked at all. That is the first step of natural farming. wait, I will come to that, but yeah, natural gardening में आपका हाँ, पहली बात तो इनपुट आपका रिड्यूस हो जाएगा, ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी द नील मीन्स आपने जो ये इकोसिस्टम में बता रहा था अभी, तुम्हारा ये सॉइल है, इसको पूरा आपने ट्रीज़ लगाए, राइट, बहुत सारे लेबल के ट्री लगाए, बड़ा ट्री, फिर मीडियम ट्री, फिर छोटा ट्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बड़ा ट्री हो गया, बड़ा ट्री से 6 फीट पे या 12 फीट पे, 9 फीट पे, एक डिफरेंट मॉडल है, आप क्या लगा रहे हो उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे। तो इन जनरल फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ एक उसका एग्जांपल। लेट्स से यहाँ पे गुआवा है, गुआवा से 8 फीट पे हमारा ये है अनदर बिग ट्री, दैट इज़ चाइनीज़ लेमन। आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस एज ए बिग ट्री बिकॉज उसकी बस हमारे पास छोटे छोटे बुशेस हैं हमारे पास, राइट, यहाँ पे ग्रेप भी है। तो बड़े ट्रीज़ हो गए, बड़े ट्रीज़ अपना लीफ ड्रॉप करेंगे, हमको मल्च देंगे, वहीं पे ड्रॉप होगा, मिट्टी कवर होगी, और उनके बीच में जो है मिट्टी को पूरा कवर करना है, दैट वुड बी ये तुम्हारा
that is mulch. That mulch is of two type. ड्राई मल्च दैट इज़ यहाँ पे अभी तो हमने फिलहाल धनिया मेथी पालक लगाया हुआ है, आएगा लाइव मल्च ही हो जाएगा, दैट इज़ दिस इज़ लाइव मल्च, राइट। जब ये बड़ा हो जाएगा तो लाइव मल्च हो जाएगा। अगर मिट्टी तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि हमारी मिट्टी खाली रहेगी। अभी तो जस्ट हमने प्लांट किया हुआ है, 1 महीने में हमारे देखो सीड का जर्मिनेशन ग्रास के जर्मिनेशन से फास्ट होता है। ऑलवेज डोंट थिंक कि हमारा जो है यहाँ पे घास भी तो है, घास भी आ जाएगा, लेकिन नहीं, आपने जो ग्रो करा हुआ है सीड का जर्मिनेशन उसका फास्ट होगा। तो कुल मिला के अगर आपने मिट्टी में नेचर को आपने कुछ नहीं ग्रो किया तो नेचर आपको कुछ देगा, नेचर आपको दे के ही रहेगा, तो घास दे देगा, ग्रास दे देगा। यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं ड्राई मल्च, यहाँ पे रखा हुआ पूरा मिट्टी हमारी कवर्ड है, पूरी ही कवर करना है। दैट इज़ द थिंग दैट यू हैव टू मेंटेन इन द नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल गार्डनिंग। एंड the next step is how to get the microbial ecosystem, right? microbes मतलब microbes क्या है? Nothing but that will prepare food, that will make your soil rich, right? वो आपके इसमें कैसे आएंगे? सो उसके लिए हम नेचुरल गार्डनिंग में क्या होता है, हमारे पास एक कल्चर होता है, तो बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सुभाष पालेकर जी बोलते हैं जीवामृत यूज़ करो, दैट इज़ फॉर काइंड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग microbes in your ecosystem, right, in your soil. And there is another person from the Gujarat, गोपाल भाई सुतारिया जी, उनका जो एक गौकृपामृतम करके कल्चर है, तो वो जो है वो भी दैट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ कोर्स दैट इज़ फॉर दैट सेम पर्पस, and it will kind of generate the earthworms, microbes, etc. in your soil, right? So these are the things that, and there is another Jivamrit that is from Jhansi, that is Sachanji actually from Jhansi. So he also had the culture. If you use that, the same thing, like you will get the microbes, you will get the earthworms. So that is the second thing, right? So अपनी मिट्टी में अपने को माइक्रोब्स लाने हैं, अर्थवर्म्स डेवलप करने हैं, तो उसके लिए आप एक कल्चर डालो। तो शुरू में तो कम से कम डालना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये वन टाइम चीज़ें हैं। आपके सॉइल अच्छी हो गई, माइक्रोब्स आ गए, तो बार बार आपको डालना नहीं पड़ेगा। मे बी आपको 6 मंथ में बंद कर दो, डिपेंड करता है कि आपके माइक्रोब्स कितने हो गए, अच्छे हो गए, नहीं इसमें अर्थवर्म्स कितने हो गए, अच्छे हो गए, एनफ है, बस हो गया। आपका ये मेंटेन हो गया, इसमें पत्तियाँ गिरती रहेंगी, मल्च होता रहेगा। ग्रीन मल्च तो आप कर ही रहे हो, आप ग्रीन मल्च करना नहीं है, आपको उगा रहे हो, प्रोडक्शन ले रहे हो, बस उतना ही करना है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा माइक्रोब्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट जनरेटिंग द माइक्रोब्स। और ऑर्गेनिक गार्डनिंग में क्या करते थे आप, यू आर नॉट वरीड अबाउट माइक्रोब्स, यू आर कीपिंग योर सॉइल नेकेड। आपकी सॉइल को ऐसे रखते हो ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जब हमने स्टार्ट किया था तो एकदम मिट्टी को क्लीन, हमने कुछ क्लासेस भी ज्वाइन करा था, वो बोलते थे कि हाँ गुलाब रोज़ इट लव्स क्लीन सॉइल, क्लीन इन्वायरमेंट। व्हाट द हेक, दिस इज दिस, सी दिस इज rose, this is my rose, you see how much dirt, you even don't understand, like see there are a lot of things, you will see only the green. समटाइम्स हम सोचते हैं कि हमारा सॉइल अच्छा नहीं दिखेगा, मल्च करेंगे, ये क्या, हाँ सॉइल दिखेगा ही नहीं आपका भाई। और सॉइल दिखेगा भी तो ऐसे कुछ दिखेगा, तो कुछ मतलब ओवर द टाइम अब तो मुझे आदत हो गई है, उतना बुरा नहीं लगता है, बुरा लगता ही नहीं है कुल मिला के, राइट। ये देखो रोजेस है, हमारा इतना आया हुआ है, अभी पूरे इसमें बर्ड्स पूरे फैले हुए हैं। हमारा ये रोज़ है देखो, पूरा यहाँ पे लाइव मल्च है फिलहाल। तो वो दैट इज़ द थिंग्स दे आर ट्राइंग टू सेल, एज सिंपल एज दैट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आप वहाँ पे देखोगे जहाँ पे समवन ट्राइंग टू सेल यू सम इनपुट फॉर योर गार्डन, दैट आई वुड से इज़ ऑर्गेनिक गार्डनिंग। नेचुरल गार्डनिंग में हमारे पास कुछ ऐसा है ये नहीं है कि हम आपको दे दें पैसे में, राइट। माइक्रोब्स मैं आपको फ्री में दे दूंगा। कल्चर हमको जो है, हमारे जो कल्चर्स प्रोड्यूस मतलब बनाने वाले लोग हैं, वो या तो आप खुद बना लोगे, या तो जो है आप, जिससे गौकृपामृतम है, आप खुद नहीं बना पाओगे तो एक बार लेके आगे कल्चर फ्री में वो भी मिलता है, पैसे तो देने ही नहीं है।
तो कुल मिला के पैसे इसमें हम ऐसा कुछ आपको दे ही नहीं सकते हैं कि जो आप स्टार्ट करो, राइट। यहाँ पे आपको कल्चर लेके जाना है ज़्यादा से ज़्यादा एक बार स्टार्ट करने के लिए, एंड दैट्स ऑल। तो नेचुरल गार्डनिंग में हाँ आपको प्रोड्यूस की बात कर लेते हैं। आपकी क्वालिटी कैसी होगी। एक चलो आपने नेचुरल गार्डनिंग से एक पपाया प्रोड्यूस किया, और एक वही पपाया आपने ऑर्गेनिक गार्डनिंग से और केमिकल गार्डनिंग से, दोनों तीनों से। तो केमिकल वाला तो आपको उसमें केमिकल होगा, मे बी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा, वो कैंसरस हो सकता है, दैट कुड बी द प्रॉब्लम। कमिंग टू ऑर्गेनिक में आपने वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है, आपने बोन मील डाला हुआ है, अच्छा हो गया, तो आपका टोमेटो जो है 2 मंथ में रेडी हो गया, राइट। और नेचुरल गार्डनिंग आपने किया, आपके सिस्टम में माइक्रोब्स हैं, आपका सॉइल रिच है माइक्रोब्स से, और आपका उसका प्रोड्यूस है, राइट। मे बी 2 मंथ उसको भी मान लेते हैं, 2 मंथ इन जनरल। नेचुरल गार्डनिंग में थोड़ा सा देखो, नेचर एकदम स्लो काम करता है। वही चीज़ आपने उगाया हुआ है, लेट्स मे बी पपाया नहीं, हम उसका एग्जांपल लेते हैं टोमेटो का। टोमेटो क्योंकि 3 मंथ का फसल होता है, रेडी हो जाता है, राइट। लेकिन जब आप केमिकल गार्डनिंग से करते हो, केमिकल फार्मिंग करते हो, तो क्या है कि यही चीज़ आपने लगाया, उसका सीडलिंग सपोज करो ऐसे लगाया, जैसे हमने अभी लगाया हुआ है, राइट। तो आप ऐसे लगाए तो ये जो है 1 मंथ में रेडी हो जाएगा, एकदम रेडी टू फ्लावर, रेडी टू फ्रूट। मे बी आपका 1.5 मंथ में केमिकल से तो आराम से इसको हार्वेस्ट भी कर लेगा, तो उसमें आपका कीड़ों को टाइम नहीं मिला अटैक करने का, और तो आपका मतलब मस्त हो जाएगा। ऑर्गेनिक गार्डनिंग में मे बी 2 मंथ लग जाएगा, क्योंकि आपने वर्मी कंपोस्ट डाला, ये सब डाला, सब कुछ चीज़ें डाली, और आपका रेडी हो गया, राइट। तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आपने इनपुट डाल दिया, बस वही प्रॉब्लम है। और नेचुरल गार्डनिंग में क्या है कि चीज़ें और भी थोड़ा सा स्लो होगी। मे बी आपकी सॉइल रिच भी है, आपको टाइम लगेगा, मे बी 2 मंथ की जगह पे आपको 2.5 मंथ लग गया, 3 मंथ भी लग सकता है, क्योंकि नेचर देखो, आप जंगल को देखोगे तो बहुत स्लो चलता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वही चीज़ आपने ग्रो किया, टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन आप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। न्यूट्रिशन किस में ज़्यादा होगा? जो 1.5 मंथ में एकदम पौधा मैच्योर भी नहीं हुआ है, और वो देखने में इतना बड़ा बड़ा टोमेटोज़ आ गया, और उसमें क्या ही होगा, क्योंकि देखो अभी पहला पौधा ग्रो होता है, फ्रूट आता है, जैसे ही लाल हुआ वैसे ही आपने उसको प्लग कर लिया। न्यूट्रिशन तो उसमें, जब उसमें न्यूट्रिशन सेटल होने का टाइम भी होता है, राइट, एक ड्यूरेशन होता है जिसमें अब वो पौधा मैच्योर होगा, उसमें सीड डेवलप होगा, सीड में ही मोस्ट ऑफ द एनर्जी होती है। उसी टाइम आपने उसको प्लग कर लिया, क्योंकि आपका शेप तो अच्छा आ गया, दिख रहा है, जो दिखता है वो बिकता है, लो तुमको वही चाहिए था, हम तुमको वही बेच दिया। केमिकल गार्डनिंग में ही, केमिकल फार्मिंग में ही हुआ, राइट। अब वही चीज़ हमने अभी ऑर्गेनिक में किया, तो आपको इनपुट कॉस्ट ज़्यादा आ गया। और हाँ, ऑर्गेनिक में भी देखो, कुछ लोग मैंने देखा है कि इवन खुद पे भी करते हैं, खुद छत पे ही करते हैं। तो क्या है कि वो जैसे ही लाल हुआ ऐसे तोड़ लिया, मतलब थोड़ा सा पकने दो, थोड़ा सा, मतलब एकदम हल्का सा, जो चीज़ पकेगी उसी में न्यूट्रिशन आएगा। तो अक्सर ऑर्गेनिक गार्डनिंग में क्या है कि वो चीज़ मिमिक वही केमिकल वाला ही करते हैं, इनपुट भी ज़्यादा डाल देते हैं और जल्दी प्लग कर लेते हैं, कच्चा ही तोड़ लिए, तो वो जो है आपको न्यूट्रिशन उतना नहीं देगा। और नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, इन जनरल इसमें बहुत स्लो प्रोसेस रहेगा आपका। जैसे ही आपका पकना शुरू हुआ, यानी 2 मंथ में ये जो है स्टार्ट होगा पकना, 2.5 to 3 मंथ लग जाएगा इसको पूरा लाल होने में। धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। और इसका नेचुरल गार्डनिंग का जो साइकिल आप फॉलो करते हैं इन जनरल, की नेचर में जब वो एकदम फुल्ली राइप हो जाता है, ट्री में राइप हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपने ड्रैगन फ्रूट तोड़ लिया, आपने घर पे रखा हुआ है, वहाँ पे पका रहे हो, ऐसा नहीं है। तो डेफिनेटली इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होगा। सो दैट इज़ अबाउट नेचुरल गार्डनिंग। सो नाउ द पॉइंट इज़ कि भैया हमारे पास तो पैसे हैं,
हम तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर सकते हैं, राइट, क्योंकि आजकल पैसे बहुत हैं हमारे लोगों के पास, तो उनको तो माइक्रोब से मतलब ही नहीं है, वर्मी कंपोस्ट या लेके आएंगे। तो उनके लिए भी मैं ये बात बोलूँगा कि ठीक है, पैसे हैं, आप मार्केट से लेके आ सकते हो, लेकिन जो क्वालिटी है और जो एफर्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज़्यादा है। मार्केट से आप नीम ऑयल लेके आओगे, वो घटिया मिलता है, उसमें पता नहीं, हो सकता है केमिकल भी मिला दें। वर्मी कंपोस्ट लेके आते हो तो अभी मैं लेके आता था शुरू में, मुझे कई बार डाउट हुआ कि भाई ये यूरिया डीएपी तो नहीं मिला देता है, और वो मिलाता भी था कुछ तो पैकेट में, बोलता था ऑर्गेनिक है बोलता था ये ऑर्गेनिक, कुछ तो पैकेट रहता था, बोलता था ऑर्गेनिक। मुझे लगता है भाई, मैं पैकेट देख के ही मुझे डर लगता है कि भाई सारा पैकेट वाली चीज़ ऑर्गेनिक में हो आ ही नहीं सकती, लेकिन आजकल लोग बना के कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन। बट द पॉइंट इज़ कि भाई मार्केट पे विश्वास नहीं कर सकते, राइट। पहली बात तो नीम ऑयल, नीम खली हमने कितनी बार मंगाया, पूरा कभी एकदम डस्ट जैसा आ गया, कभी एकदम बकवास आ गया, उसमें स्मेल ही नहीं आ रहा है। नीम खली का कितना अच्छा स्ट्रांग होता है, मतलब स्मेल होता है, राइट। तो पहली बात तो जो आप इनपुट लेके आ रहे हो, पैसे पे करके लेके आ रहे हो, दैट इज़ नॉट राइट इनपुट यू आर गेटिंग। आपने वर्मी कंपोस्ट की जगह पे यूरिया डीएपी लेके आ गए, वो मिला दिए, और आपको अच्छा भी लगेगा, अरे साला ये तो हमारा पौधे ग्रो हो गए बहुत तेज़ी से, क्योंकि इनको जो है केमिकल मिल गया एकदम, और भ्रम बना के चल गए ये, राइट। तो एक तो वो वाला चैलेंज है कि आपको सही चीज़ सही पैसे में नहीं मिलेगी। नेचुरल में क्या है कि आपने जो किया हुआ है आपके ही सॉइल में है, आपकी सॉइल धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, आपका कार्बन इसमें जैसे जैसे आपका कार्बन डिकम्पोज होगा, मल्च डिकम्पोज होगा, आपका सॉइल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब हमारे केस में क्या है, अब ये सेल्फ सस्टेनेबल हो गया है, हमारी मिट्टी बहुत अच्छी हो गई है, इसमें इतने बड़े बड़े प्लांट्स, हम इसमें कुछ डालते ही नहीं हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या है कि इनको, क्योंकि हमको ज़्यादा प्रोड्यूस लेना है, इतनी बहुत सारी चीज़ें हम ग्रो करते हैं, राइट। अब बहुत सारी चीज़ें ग्रो करने के लिए थोड़ा सा इनपुट के रूप में हम जो किचन का वेस्ट है उसका पानी डाल देते हैं। मतलब आप डाल दोगे तो वो प्लस पॉइंट है। अगर आपकी मिट्टी, देखो अब इतना अच्छा नहीं हो गया ये, लेकिन इतने बड़े बड़े हमारे पास ये जो फ्लावर के हैं या पेड़ लगे हुए हैं या बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, उतना जो हम आउटपुट ले रहे हैं उसके हिसाब से हमारा इनपुट उतना भी अच्छा नहीं हुआ, हमारी सॉइल उतनी भी अच्छी नहीं हुई। मिट्टी तो अच्छी तो हो गई है, अब इसमें कीड़े हमें बहुत दिनों से मतलब ढंग के दिखे नहीं हैं, इक्का दुक्का दिखते हैं टाइप के, राइट। ऐसा भी नहीं है कि हम इसमें बहुत मेहनत करने लगे, पहले तो बहुत मेहनत करवाता था, जो है नीम ऑयल हमेशा लेके मारते रहते थे, कभी जो है विनेगर डाल रहे हैं तो कभी कुछ डाल रहे हैं, कभी हल्दी डाल रहे हैं, कभी उसमें क्या है हल्दी और उसके बाद काली मिर्च, ये वो ऑर्गेनिक में यही सब फंडे चलते हैं। तो इट वाज टू मच, लिटरली टू मच, lot of work, lot of effort, lot of input, and output is वेस्ट, बिकॉज वो इंसेक्ट्स के लिए माहौल बन जाता है। यहाँ पे हमारे पौधे स्ट्रांग हो गए एक बार। सिंपल सी बात है कि अगर आपका पौधा हेल्दी है तो आपको इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत ही नहीं है, कीड़े आएंगे ही नहीं। तो इट मीन्स कि आप अपनी सॉइल को इम्प्रूव कर दो, आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा, पौधा हेल्दी हो जाएगा तो इंसेक्ट्स आएंगे नहीं। यू हैव नो नीड टू वरी अबाउट इंसेक्टिसाइड। और तुम्हारा फर्टिलाइज़र का काम हमारा जो है कल्चर डाल दो, ये मल्च डाल दो, हो गया। सो दिस इज़ all about chemical, organic and natural. So I'm really happy I have moved to this thing, right? And I do not have anything in the natural that I can say that okay, I can sell out as a for you as a input actually, right? I have only the produce that is healthy, that is good, that is nutritious, seriously nutritious. It's not something, सो मे बी उतना इसका, हाँ, इसमें जो आपका ग्रोथ है मे बी उतना अच्छा नहीं दिखेगा। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, राइट, कि 2 महीने की जो आपने ऑर्गेनिक में 2 महीने में प्रोड्यूस लिया है, इसमें हो सकता है 3 मंथ में आए, थोड़ा स्लो दिखे। अभी जैसे मैं दिखाता हूँ, मे बी हमारा टोमेटो लेट्स, क्योंकि ये बहुत जनरली लोग उगा ही लेते हैं, तो मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, तो ये पिछले अभी पता नहीं कब से लगा हुआ है, आई थिंक 1-2 मंथ हो गया होगा ये ऑलरेडी, अभी इतना ही स्टेज है इसका।
तो बहुत स्लो चलता है, चलता ही एकदम स्लो है। तो इसमें जो है आप एक अब हाँ, अभी आप बोलोगे कि भाई ये तुम्हारा बड़े लेवल पे, अब भाई बड़े लेवल का तो आप भूल जाओ, आप अपने लिए भी कर रहे हो। जब बड़े लेवल पे करोगे तो उस हिसाब से आप करोगे, राइट, उसमें कल्चर ज़्यादा डालोगे, वो ज़्यादा करोगे। लेकिन आप अभी अपने लेवल पे करो, कमर्शियल लेवल पे बोलोगे कि इसमें प्रोडक्शन उतना हो ही नहीं पाएगा ऑर्गेनिक में, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनपुट डालना पड़ेगा इसमें नेचुरल इसमें, राइट। तो देखो कमर्शियल लेवल पे तो आपको और भी ज़्यादा घाटा होगा अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारा आप कितना बोरिया जो है वर्मी कंपोस्ट ये सब लेके आओगे, कितना उसमें बोन मील डालोगे अपने खेत में, फील्ड में, अपन फील्ड में, राइट। तो नेचुरल फार्मिंग क्या है कि एक इनिशियली देखो प्रोडक्शन आपको हो सकता है कम दे डेफिनेटली, बट ओवर द टाइम इट विल इम्प्रूव। बट इफ़ यू कैन सी टेक द लिटिल रिस्क ओवर द टाइम, इट्स गोइंग टू हेल्प। गार्डनर के लिए तो डेफिनेटली आई वुड से कि ये सही है। नेचुरल गार्डनिंग का तरीका ही अपने को यूज़ करना है, अपना किचन वेस्ट यूज़ करना है, कल्चर यूज़ करना है, और ये मल्चिंग यूज़ करना है, एंड दैट्स ऑल वी हैव टू डू। अदरवाइज नहीं तो आप मार्केट से ला के यू विल क्रिएट द mess and you will drop this gardening thing because this is going to block you, right? Always you have to, ये तो इसमें आ गया, फ्लावर्स भी आ गए। तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से टुडे। सो मैं अपने गार्डन का एक बार अपडेट देता हूँ, क्योंकि नेचुरल गार्डनिंग का एक सैंपल मैं दिखाई देता हूँ कि कैसे दिखता है। देखो कितना स्लो चलती है चीज़ें। ये हो गया होगा 2 हफ्ते का, राइट। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें लगाई थी। यहाँ पे देखो गार्लिक है, तो और इसमें धनिया है, और स्ट्रॉबेरी भी है, और यहाँ देखो हल्का फुल्का मल्च भी, जिससे हमको मौका मिलता है तो हल्का फुल्का मर्च कर ही देते हैं, राइट। तो और इसमें और तो कुछ भी नहीं है शायद, इसमें खाली पालक है, क्योंकि एक 6 इंच का तो पॉट है वो। क्या, अरे बाप रे, इसमें तो धनिया आ गया। अब सोचो हमारे पास इतना धनिया हो गया है कि हम काट भी नहीं पा रहे हैं टाइम से। तो फिलहाल इस बार तो हमने धनिया खूब मिल गया। यहाँ पे देखो इसमें थोड़ा सा कीड़े भी लग गए हैं, तो कीड़ों का भी जो है रहता है भाई, वो भी जो है लग जाते हैं कभी कभार, लेकिन इन जनरल में आप देखोगे तो इसमें कम ही मिलेंगे आपको, राइट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें भी गार्लिक है, देखो टोमेटो भी आ रहा है इसमें भी, और मतलब मल्टी क्रॉपिंग करना है पहली बात तो। और मल्चिंग के रूप में यहाँ पे पूरा ग्रेन हो गया है। इसमें नीचे जो है मल्च हमने किया हुआ समझो, क्योंकि हमने नीचे इसमें पूरा लीव्स यहाँ तक फिल कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर 2 इंच ही मिट्टी है, तो ऊपर आपको मल्च नहीं दिख रहा है, ऊपर तो ग्रीन हो गया, लेकिन वो जो हमारा जो लीफ वेस्ट है वो डिकम्पोज हो रहा है धीरे धीरे। हमने कल्चर डाल दिया इसमें, तो पूरा हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ तो नीचे है हमारा पूरा सिस्टम, बाकी ऊपर तो तुम्हारे काम का चीज़ है। यहाँ पे इसमें देखो बहुत सारा चीज़ आ रहा है। फ़िलहाल इसमें धनिया है, इसमें हमारा ये आ गया, अच्छा है। तो फ़िलहाल ये देखो इसमें भी गोभी, तो अब डाउट है मुझे, क्योंकि ये फरवरी स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पे ये देखो स्ट्रॉबेरी भी आ रहा है। मतलब ग्रोथ अच्छी उतना नहीं है स्ट्रॉबेरी को, पता नहीं क्या चाहिए, हम इसको धूप ज़्यादा दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये तो मिट्टी अभी अभी है समझो, नीचे पूरा हमारी लीव्स है, और ऊपर जो है ये, अरे बाप रे, अच्छा इसमें फ्लावर का हमने मल्च कर दिया था, वो फ्लावर ही जम गया है यहाँ पे, वो गड़बड़ कर दिया इसने। एक्चुअली बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमको फ्लावर इसमें ड्रॉप नहीं करना है, तो वो ड्राई फ्लावर थे, वो पूरा जर्मिनेट हो गए। यहाँ पे गोभी थोड़ा अच्छी दिख रही है, यहाँ पे लग रहा है ये सही हो गई, ये चलेगी। तो इसको हम अगर थोड़ा सही से पानी वानी मॉइस्चर मेंटेन करेंगे तो आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने गमले में इस बार लगा दिया, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वो क्यारी में ही कर रहा हूँ। ये तो फ़िलहाल इस बार हमने, क्योंकि नीचे पड़े हुए थे, और हमने इसमें थोड़ा हल्का भी कर दिया इसको। फ़िलहाल हल्का, इतना भी हल्का नहीं है, ये देखो अभी फ़िलहाल उठा ले रहा हूँ मैं ऐसे फ़िलहाल। तो इसमें हल्का भी बन गया, और हमारा पूरा नेचुरल इकोसिस्टम भी है। और ये देखिए हमारा सैपलिंग्स इसमें चेरी टोमेटोज़ के,
देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। बड़ा मरेला सा दिख रहा है, ये तो कुछ तो है, लगाना पड़ेगा इसको। तो ये फ़िलहाल गमला बड़ा वाला है, तो इसके अंदर देखो जो गमला 15 इंच प्लस है आई थिंक, उसमें जो है आप एक रूट वाला तो उगाना ही उगाना है इसमें तो, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल आपने टर्मरिक है, सॉरी हाँ टर्मरिक जिंजर तो उगाना ही उगाना है, टर्मरिक या जिंजर तो उगाना ही उगाना है, वो मस्ट कर दो आप। और उसके अलावा इसमें क्या डाल सकते हो, जैसे हमने अभी फ़िलहाल गार्लिक डाला है, उसमें रेडिश डाल सकते हो, उसमें कैरेट डाल सकते हो, कोई भी रूट वाला जो नीचे तक जाए। और एक बड़ी चीज़ इसमें उगा सकते हो, फॉर एग्जांपल आप टोमेटो है, ब्रिंजल है, चिल्ली है, वो उगा सकते हो। बाकी कवर क्रॉप जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल धनिया, अभी दिखाता हूँ, ये देखो ये देखो धनिया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें गार्लिक है, कोरिएंडर है, और आपको ये बड़े में समझो हमारे पास ये है, और हमने यहाँ पे रोज़ भी लगा रखा है। और आपको इसमें टर्मरिक तो ऑलरेडी है ही, टर्मरिक या जिंजर होगा ऑलरेडी, तो वो चीज़ हमारा आएगा मार्च अप्रैल वगैरह से स्टार्ट होगा वो निकलना उसका स्प्राउट। तो तब तक हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, हम 1-2 बार इसमें धनिया वगैरह ले लेंगे। यहाँ पे देखो टोमेटो अपने आप ही आए हुए हैं, बहुत अच्छे, दैट इज़ फाइन। यहाँ पे एक गुआवा भी लगा रखा है, जस्ट हमने सैंपल के लिए लगा रखा है, शायद इसको मैं मूव करके कहीं फील्ड में लगाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये है हमारा गमले और हमारा ये हो गया। तो कुल मिला के ओवरऑल देखोगे तो कीड़ों का अगर देखोगे शेयर तो बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 मिनट, मेरा पानी वाटर देखो ओवरफ्लो हो रहा है, ये हमारा प्रेशियस वाटर है, इसको मैं निकाल के फिर से वापस डालूंगा इसी में। इसको मैं ऊपर पहले इसको हटाता हूँ। ओके, सो अभी बात करते हैं हमारे क्यारी की। तो क्यारी में हमारा देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो तुलसी है, तुलसी के आई थिंक 1 फीट पे ही हमारा ये रोज़ ब्यूटीफुल, हमारा बहुत सही रोज़ है ये देसी। और पता नहीं, ये देखो कांटे खूब हैं इसमें, ये देखो कांटे इसमें बहुत हैं, और ये थोड़ा सा पिंक होता है, वाइट होता है, येलोइश होता है, और बड़ा बड़ा भी होता है, थोड़ा लंबे टाइम तक चल जाता है। इन जनरल ये देसी वाला जल्दी से ड्रॉप हो जाता है, राइट, लेकिन ये वाला चलता भी है, महकता भी है, बहुत सारी, मतलब मस्ती है एकदम। लेकिन मेरा जो ग्रोथ रेट है, आज तक हमने ये वाला प्लांट बहुत लगाए, लेकिन कोई ऐसा प्लांट नहीं, मतलब एक नहीं बना पाया है जो एक अच्छा सा बड़ा सा हो जाए एकदम। अभी तक सारे नए नए ही हैं टाइप के। यहाँ पे फ़िलहाल एक तुलसी अगेन है, बाकी यहाँ पे सब नए नए लगे हुए हैं, धनिया वगैरह आ रहे हैं। अब इसमें देखो हमारे जो फ्लावर ड्रॉप हुए हैं अपने आप, ये मैरीगोल्ड है, ये वाला राइट। और यहाँ पे गार्लिक लगा हुआ है किनारे किनारे। यहाँ पे गोभी भी कल हमने लगा दिया, जगह थी और हमारे पास नीचे क्या है शेड में पड़ा हुआ था, शेड में नहीं आता है सब गोभी वोभी, इसको धूप चाहिए अच्छा खासा। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे धनिया है, इधर पालक होगा, फिर मेथी होगा, मतलब पूरा ये अभी जो है अभी मैं दिखाता हूँ कैसे दिखेगा, क्योंकि उधर हमारा बड़ा भी है इसमें। और ये देखो यहाँ पे खाली पालक है, ये छोटा सा गमला है इसमें। अब इसके साथ में कुछ लगा सकते थे आप राइट, लेकिन उस टाइम हमारे पास नहीं रहा होगा, कुछ ज़्यादा ही डेंस हो गया। इसको फ़िलहाल हमको इसको कम करना है, नहीं तो ये अच्छा ग्रोथ नहीं ले रहा है, इसलिए राइट। और ये हमारा रेड डायमंड गुआवा, ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। और अभी टोमेटो हमने ये कल ही लगाया, एक्चुअली नीचे हमारे पड़े हुए थे, और ये फ्लावर भी है, पता नहीं है इसको आई थिंक मैं तोड़ ही देता हूँ, क्योंकि थ्रीजिंग कटिंग करना जो है बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो एक जल्दी लगाया हूँ, इसको कल ही लगाया हूँ,
तो इसके मरने के भी चांसेस हो जाएंगे अगर ये फ्लावर वगैरह अभी स्टार्ट करेगा तो। अभी इससे क्या है कि इसकी जान बच सकती है इसका फ्लावर तोड़ने से, क्योंकि पूरी एनर्जी इसको प्लांट में लगाएगा और ये नई ब्रांचेस फोड़ सकता है मुझे लग रहा है। ये देखो यहाँ पे टमाटो भी है, इसको भी मैं तोड़ ही देता हूँ, लालच नहीं करता हूँ। इसमें भी देखो यहाँ पे तो इतना बड़ा प्लांट हमने नीचे था क्योंकि शेड में था तो उसको होना वैसे भी नहीं था, तो हमने लगा दिया। हो सकता है लग भी जाए ये मोस्टली। तो हमारे ये जो ऊपर हैं देखो वहाँ पे थोड़ा सा 9 इंच वाले गमले हैं। 9 इंच आई थिंक 1 फीट होगा इसका हाइट और 9 इंच का डाया होगा। तो इसमें देखो मल्टी हमने ट्राई किया है हमेशा जो है। यहाँ पे जैसे स्ट्रॉबेरी लगा दिया, स्ट्रॉबेरी इसमें लगा दिया, अभी रिसेंटली लगाया हूँ इसको। गोभी वगैरह था यहाँ पे, देखो गोभी हमने हार्वेस्ट नहीं किया टाइम पे, ये फ्लावरिंग आ गया। फ्लावरिंग आने से क्या है कि उसको टाइट हो जाता है वो, फिर वो बात नहीं रहती, इसलिए इसको तुरंत जो है जैसे ही बंधा रहे एकदम, ऐसा ओपन नहीं हो फ्लावर। नहीं तो देखो यहाँ पे भी फ्लावर आ गया। तो अब देखो गमले, छोटे छोटे गमले में कितना ही साइज़ आएगा, इसीलिए इतना छोटा छोटा आता है उसमें। अभी यही चीज़ इसमें जो था एक बड़ा सा उसमें आ गया था। तो ये होता है एक एडवांटेज जो है मिट्टी कनेक्टेड होने का, इसलिए मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि जितना मैक्सिमम बड़ा से बड़ा पॉट हो सके वो यूज़ करो। क्योंकि उसमें क्या है कि एक की जगह पे आप 10 चीज़ें लगा लोगे और आपका इकोसिस्टम भी अच्छा रहेगा। अब छोटे में क्या है कि उतना इकोसिस्टम आप बना नहीं पाओगे। आपको बाहर से डालना है, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यही करते हैं इसीलिए लोग ना मोस्टली, कि छोटे में क्योंकि बाहर से ही सब कुछ डालना है, मेहनत हो जाती है कुल मिला के। तो हमारा रेड डायमंड गुआवा के बाद ये जो है ये देखो, अगर ये है हमारा कमरख, इसको बोलते हैं स्टार फ्रूट। तो ये चाइनीज़ कमरख है, इसमें सारे देखो फ्लावर्स हैं, ये शायद छोटे छोटे की लीव्स हैं, लीफ है लग रहा है, लीफ है। फ़िलहाल मैं देखता हूँ कैसे जलता है। लेकिन मेरी छत पे आप देखोगे लगभग 6 फीट पे, यहाँ पे 5-6 फीट होगा ये, तो 6 फीट इधर हो गया, फिर यहाँ से 6 फीट तो नहीं है ये, फ़िलहाल 5 ही फीट पे हमें लग रहा है। ये चाइनीज़ ऑरेंज है, ये भी नई पत्तियाँ आ रही हैं, ये तो पुरानी पत्ती है। और फिर यहाँ से 6 फीट पे, ये तो लिटरली 6 फीट से ज़्यादा होगा। भगवा हमारा ये हो गया। मैं पहले ट्री दिखा देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ पूरा गार्डन। हमारा पोमोग्रेनेट, उसके बाद हमारा ये स्वीट लेमन, फ्लावरिंग वगैरह आ रहा है इसमें। बहुत दिनों बाद, ये पूरा लगाने के बाद इसमें सीधे फ्लावरिंग ही आया, पत्तियाँ तो आई नहीं। तो फिलहाल मैं इसको ले लेता हूँ, इस बार ले ही लेता हूँ। 6 महीने ही हुआ, लेकिन ये ऐसे ही बकवास प्लांट लग रहा है, लेकिन चलो ठीक है। यहाँ पे एक स्पाइसेस भी लगा दिया हमने। और यहाँ पे करौंदा हमारा सबसे ओल्ड प्लांट, 5 ईयर ओल्ड होगा कम से कम। इसका स्टेम देखो काफ़ी स्ट्रांग है, ये देखो ऐसा कुछ लगभग 1 इंच तक होगा इसका थिकनेस। और फिर बाकी हमारे इसमें बहुत सारे देखो, तुलसी वगैरह मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा ये हाइब्रिड वाला रोज़ है, इसका स्मेल अच्छा नहीं है, ये कुछ ये वाला है जो हमने यहाँ पे, ये वाला देसी वाला जो मैं बता रहा हूँ हमारा, वो उधर है वो वाला, वो बहुत ज़बरदस्त है भाई। स्मेल इतना अच्छा रहता है ना इसका, बहुत मज़ा आ जाता है एकदम। और ये हाँ, फ़िलहाल इंट्री वहाँ पे हमारा करौंदा हो गया था। और उसके बाद फिर से एक चाइना ऑरेंज, ये वाला, ये कुछ ऐसा अभी रिसेंटली लगाया हूँ, 4 महीने हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये भी रिसेंटली ही 4 महीने वाला ये ताइवान पिंक गुआवा। और यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा देसी रोज़ फ़िलहाल। और यहाँ से ये हो गया रामरंगन ऑरेंज। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे 6 फीट मान लो, तो हमारा ये स्वीट करौंदा। इसकी पत्तियाँ थोड़ा राउंड राउंड होती हैं, ये देखो। आज तक हमने खाया नहीं कभी इसको, लेट्स सी। और उसके बाद लास्ट में हमारे क्यारी के ये है ऑल टाइम कागजी लेमन है एक्चुअली ये। इसमें फ्लावरिंग आया था, हमने निकाल दिया। अब पत्तियाँ इसकी थोड़ा अभी हमें लग रहा है डॉर्मेंसी वाला है, निकलेगी। ओके चलो, अभी यहाँ से हम उल्टा चलते हैं। और यहाँ पे फ़िलहाल अभी हमने देखो कल ही इसको पूरा थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करके इसमें लगा दिया मेथी। यहाँ पे लगाया होगा शायद हमने, मेथी लगाया होगा।
अब इसमें देखो पहले की चीज़ें यहाँ पे हमारे पास ग्रेप जिंदा है, हाँ जिंदा है ग्रेप। और बाकी यहाँ पे देखो बीन्स भी आ रहा है, और उसके बाद धनिया तो लगा ही दिया है इसमें। यहाँ पे मैं गार्लिक लगा सकता था, या मूली लगा सकता था, रेडिश लगा सकता था, लगा दूंगा अभी। लेकिन यहाँ पे पुराने वाले हमारे इसकी प्रूनिंग कर दिया हूँ, तो इसमें अगर आ गया तो अच्छी बात है। हमारा ये मिर्ची खूब दिया मतलब पिछले 6 महीने से तो मैं टेरेस से ही मिर्ची खा रहा हूँ, राइट। अभी तक मैं मार्केट से नहीं लाया हूँ। एक आध बार हो सकता है बीच में शायद लाया होगा, मतलब नहीं लाया हो ये मान के चलो, मतलब खूब मिला हमको। तो बहुत ज़्यादा पेड़ भी नहीं है, ज़्यादा 4-5 पेड़ होंगे। फिलहाल अभी इसको मैंने प्रूनिंग कर दिया है। यहाँ पे भी देखो ये भी है, इसने भी खूब फ्लोरिंग दिया। लग तो रहा यार मस्त आ जाएगा इसमें, अगर इसको हम थोड़ा सा खाद दे दें। लेकिन अपन हम खाद बाहर से डालते हैं नहीं। अगर नेचुरल गार्डनिंग के साथ आप इनपुट दे दोगे ना, जैसे आपको ओरिजिनल, मान लो आपके पास गाय है, आपका गोबर मिल गया, अरे तब तो समझो आप बवाल काट दोगे ना। नेचुरल मतलब एकदम आप पूरा नेचर पे मिमिक करते हो, विदाउट इवन गोबर की बात कर रहा हूँ। अगर गोबर वगैरह मिला दिए तो समझो बवाल है, तब तो आप रॉक कर जाओगे, ये मान के चलो। तो फिलहाल हमारा वो हो गया इसमें। यहाँ पे देखो टोमेटोज़ वगैरह पता नहीं, आई थिंक ये 3-4 महीने पहले, क्योंकि ये सब छुपा हुआ था यहाँ पे हमारे पास, ये सब प्लांट वगैरह थे, हमने उनको निकाला। तो फिर यहाँ पे अभी हमने मेथी लगाया है। ये देखो, हाँ मेथी ही है, देखो ये फेंका हुआ है ना, इसमें लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो अभी टोमेटो कल ही लगाया इवनिंग में, छोटा सा एक इधर है, पूरा सब जगह नहीं लगा है लेकिन हाँ थोड़ा है। तो ये तो फिलहाल अब इसका ख़त्म है टाइम। इसका मुझे सीड रखना है यार, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला, स्पेशली ये वाला कलर जो है मैरीगोल्ड का। और इसमें हल्का स्मेल है एक्चुअली। तो इसको फ़िलहाल मैं सीड के लिए रखा हूँ, छोड़ दूँगा, क्योंकि पूरा ही लगभग निकाल दिया हूँ। और फ़िलहाल इधर देखो हमारा पोटैटो वगैरह है। तो अगर देखो आप लेना चाह रहे हो तो अच्छे से ले सकते हो, लेकिन हमारा लग रहा आएगा नहीं। उधर वाले तो एकदम भरे पड़े हैं, जल रहे हैं। हमारा उधर ड्रैगन फ्रूट है, हाँ ड्रैगन फ्रूट हर 6 फीट पे आपको ड्रैगन फ्रूट भी मिलेगा। और यहाँ पे देखो जो मैं बोल रहा था, यहाँ पे जैसे मेथी हमने कल लगाया हुआ है, इधर पूरी ग्रीन मल्चिंग इधर ऑलरेडी दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि हार्वेस्ट भी कर लिया फ़िलहाल। इधर कुछ पालक या धनिया, ये देखो यहाँ पे मेथी था शायद, मेथी धनिया पालक मैंने रो में लगाया था। तो यहाँ पे लास्ट वाली रो आप देखोगे तो पूरा पालक है ऑलरेडी हार्वेस्ट। पालक तो तुरंत आ जाता है, मस्त आ जाता है दोबारा। मेथी का तो नहीं आता है, मुझे लग रहा मेथी तो हमारे केस में तो नहीं आ पा रहा है। आता है लेकिन ये चीज़ें हैं जो आप काटते रहो आता रहेगा। धनिया भी काटते रहो आता रहेगा, हमारे पास ये तो धनिया भी है। और पूरा मतलब कवर क्रॉप्स है समझो, ये इसको बोलते हैं लाइम मल्चिंग, राइट। लाइम मल्चिंग, ड्राई मल्चिंग, कुछ ना कुछ मिट्टी दिखनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मिट्टी दिख रही है, नहीं दिख रही है, जहाँ पे दिख रही है वहाँ पे तुम्हारे सीड प्लांटेड है ऑलरेडी। तो कुल मिला के कहीं पे भी तुमको मिट्टी नहीं दिखेगी, ये मान के चलो। तो यहाँ पे देखो ये पालक वगैरह यहाँ पे हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, बहुत बड़ा हो गया था। और यहाँ पे गार्लिक तो है ही, साथ में हमको मिल जाता है। यहाँ पे देखो मेथी एक का हार्वेस्ट भी हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे ये टोमेटो वगैरह अभी रिसेंटली लगाया हूँ। तो ये मस्त हमको गर्मी में, क्योंकि ये नीचे हमारे गमलों में पड़े हुए थे, इधर ऊपर से ही गिरे होंगे, तो वो मस्त आ गए। जिनका सीडलिंग लगाओ वो नहीं आते हैं, जो नहीं लगाओ वो आ जाते हैं। ये देखो सीडलिंग हमने प्रिपेयर किया कुछ ऐसे ही है, अब इसमें सूख जाता है धूप वूप पड़ के। तो मेरा ये एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा है। जब हमने गार्डनिंग स्टार्ट करा था तो ऐसे ही सीडलिंग लगाया था, उसमें 100% रिजल्ट मिला था मुझको। अभी लेकिन जब से मैं अपने आप को एक्सपर्ट समझता हूँ तब से आ ही नहीं रहा है। तो ये है। और हमारा हार्वेस्टिंग ये है। तो फिलहाल नेचुरल गार्डनिंग में अगेन मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ कि आपको अपने गार्डन से डेली कुछ ना कुछ मिलना है, 100% मिलना है। लेट्स से 3 महीने के बाद आपको ऐसा करना है कि आपको कुछ मिलना ही चाहिए, कुछ नहीं तो आपको तुलसी का पत्ता ही मिलना चाहिए, राइट। तो अभी हमारे केस में ये मिल गया, फिर ये नहीं मिला तो फ्लावर मिल गया, फ्लावर नहीं मिल गया तो मतलब कुछ ना कुछ हार्वेस्ट, जिससे यहाँ पे धनिया मेथी पालक, मतलब ये सब 3-3 महीने की चीज़ें हैं। तो आपको कंटिन्यूअस डिलीवरी यहाँ से होनी है,
और इनपुट आपका बस वही है भैया, पानी मैक्सिमम कल्चर डाल दो या उसका किचन वेस्ट का वाटर ला के डाल दो, यही है इनपुट तुम्हारा। हाँ, सीड भी आप, क्योंकि आप इसमें सीड हम ग्रो करना अच्छा नहीं है, क्योंकि इतना छोटा सा एरिया है, इसमें सीड अब करने लगोगे तब तो हो गया, अब कितना ही सीड मिलेगा। तो सीड भी शायद आपको लेके आना पड़ेगा छोटी चीज़ों में, धनिया मेथी पालक की बात कर रहा हूँ। बाकी चीज़ों में सीड जैसे तुम्हारा कद्दू है, मीन्स पम्पकिन है, तो तुरई है, रिच गार्ड है, बॉटल गार्ड है, वो सबका नहीं, उसका तो आपको पास हो जाएगा। तो फ़िलहाल हमारा मैरीगोल्ड, ये तो मेरा फेवरेट वाला है कुल मिला के, इसको मुझे बहुत पसंद है, ये वाला कलर जो है मैरीगोल्ड का। और ये प्लांट बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो फ़िलहाल मैरीगोल्ड लगाना ही है आपको, ये मस्ट है, ये आपको अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि ये निमाटोड के लिए रामबाण है। सब मर गए थे निमाटोड और सब हमारे प्लांट में घूमते रहते थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम नीम खली ये वो डाल डाल के ज़िंदगी ख़राब कर लिए, कुछ भी नहीं गया। इसको लगाए मर गए, पता नहीं उनका नामो निशान मिट गया। तो ये फ़िलहाल मैंने कल ही लगाया है इसको। और ये चीज़ देखो मैं ऐसे लगाया हूँ, इसको ऐसे ही बेंड करूँगा। ये देखो, ये तो फ़िलहाल वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, इसको निकालना पड़ेगा, निकाल ही देता हूँ, नहीं तो आई थिंक ये फैल जाता है। इसको लालच के चक्कर में हम पूरा और भी ख़राब कर लेंगे, छोड़े निकाल ही देते हैं। ये देखो, मैं बोलता हूँ ना कि जो है बीमारी नहीं, तो ये है बीमारी। तो परफेक्शन तो ऐसा है नहीं, हम बड़े फाड़ू जो है गार्डनर हैं, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो लेकिन अभी मुझे इसमें निकालने में इसको हमको वो नहीं है, चलेगा भाई, दूसरा चीज़ें आ रही हैं। तो अभी मुझे ये चीज़ थोड़ा सा, पहले तो एक गार्डनिंग में क्योंकि इतना उसमें हम एफर्ट डाल देते थे ना, अभी जैसे ये पत्ता देखो अच्छा है इसका, ये सब अच्छा आ रहा है। तो जब ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते थे तो इतना इनपुट हमने डाल दिए रहते थे कि बाद में भाई दिल से लगता था कि अरे यार इसको कैसे निकालें इतना बड़ा प्लांट, अरे ये तो फ्लावरिंग हो रहा है इतना, 3 महीने बाद इतना बड़ी मुश्किल से फ्लावरिंग आया, इसको निकालते नहीं थे, उसी में अपना स्प्रे डाले पड़े हैं, नीम ऑयल डाल रहे हैं तो नीम खली डाल रहे हैं, तो ये डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं, पूरा ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने पालक लगाया होगा या धनिया कुछ तो लगाए हैं, कवर क्रॉप। बाकी यहाँ पे देखो टोमेटो हो गया, ये साइड में ऐसे बेंड हो जाएगा पूरा। जो है ये पूरी हमारी समझो मिट्टी, वहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं लेगा हमारा क्यारी में। आपका ये अगर पॉट भी होता तो हम बाहर कर देते इसको, पूरा हमारा कवर क्रॉप धनिया मेथी पालक हमको मिल ही जाएगा। वहाँ पे जब ये टाइम आएगा तो हमारा हल्दी वगैरह मिल जाएगा, हमने लगाया हुआ ऑलरेडी, टर्मरिक या जिंजर कुछ तो होगा, ऑलरेडी लगा हुआ है सब। इसमें हम लगाए भी नहीं है, उसी में हार्वेस्ट कर लिए, थोड़ा सा बचा हुआ है आएगा। यहाँ पे देखो हमारा कवर क्रॉप रेडी हो गया है खाने के लिए, धनिया वगैरह इधर। और यहाँ पे देखो ये सब भी आ रहा है, ये सब अपने आप आ रहा है। इसको हम करेला तो जिंदगियाँ हो गई लगाए, अरे इस बार ये भी आ गया। तो कुल मिलाकर आप सीड डालोगे तो कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, ऐसा होता है राइट। मेरे केस में तो ऐसे ही होता है भाई, सारा चीज़ तो आता नहीं है, कुछ ना कुछ। अभी जैसे यहाँ पे ये, अरे मस्त ये आ गया, कुछ ना कुछ आ जाता है, ये मान के चलो। हाँ लेकिन बेटर देन ऑर्गेनिक वन। ये देखो मिर्ची, हमने बोला ना ये हार्वेस्ट करते ही रहते हैं। ये देखो अभी बच गया, ये लग रहा है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अभी कटिंग वगैरह कर दूँगा मैं इसका, कटिंग कर देंगे शायद ये थोड़ा सा रिवाइव हो जाएगा। फ्लावरिंग भी देखो आ रहा है इसमें। तो ये देखो ये पूरा मिर्ची हमको भाई सीरियसली बहुत दिया इसने, मज़ा आ गया इस बार मिर्ची खा खा के। टोमेटो नहीं मिला उतना मुझे, लेकिन इस बार एक नीचे हमारा चेरी टोमेटो है हमारे प्लांटेशन एरिया में, उसने मुझे इतना टोमेटो दिया कि मैं टोमेटो भी नहीं ख़रीद रहा हूँ। चेरी टोमेटो है वो भी, चेरी टोमेटोज़ आई थिंक महंगा भी मिलता है मार्केट में, मतलब वो एक्सॉटिक फ्रूट में आता है, मतलब ये समझ लो। तो यहाँ पे ये देखो हमारा धनिया है, और स्मेल वगैरह इसका अच्छा तो है यार। मतलब ये हाइब्रिड ही है। देखो अगर धनिया आपको देसी वाला मिल गया तो उसका तो क्या ही कहने, लेकिन आप हाइब्रिड वाला भी लगाओगे ना, वो भी आपका कंपेटिबली बेटर रहेगा।
देखो, हाँ, अभी बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक और नेचुरल जो टेस्ट वाली बात कर लेते हैं। तो आप जो ऑर्गेनिकली उगा रहे हो उसका टेस्ट नहीं होगा उतना अच्छा। न्यूट्रिशन तो चलो ठीक है, न्यूट्रिशन तो डेफिनेटली नेचुरल में ही अच्छा होगा। अब टेस्ट की भी बात कर लेते हैं। टेस्ट भी ऑर्गेनिक में उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 2 महीने में आ गया। आप उसको पकने से पहले ही आपने जो है मे बी अपने हार्वेस्ट भी कर लिया होगा। और इसमें जो टेस्ट है, पहली बात तो एक अच्छा खासा इसको आप मैच्योर होने की बात करोगे तो उसका टेस्ट अलग रहेगा। दूसरा जो टेस्ट आता है ना, वो आपकी सॉइल की क्वालिटी से आता है। सॉइल में माइक्रोब्स अच्छे हैं, इसका जो CN रेशियो है 1:10 होता है ना, कितना जो आइडियल, जो आपका इसमें जो कार्बन रेशियो होता है तुम्हारा, बोलते हैं ना, अभी जो हमारी सॉइल में होगा बहुत कम होगा आई थिंक, क्योंकि जब ये इसका CN रेशियो एक 1% से ज़्यादा हो जाए तो बढ़ता जाता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और फिर जो है उसका टेस्ट जो है अलग ही आने लगता है चीज़ों का। जो हमारे पुराने टाइम में आपने सुना होगा कि उसमें टेस्ट आता था, कुछ अलग रहता था। अभी वही चीज़ मैं इसमें उगा रहा हूँ, मुझे टेस्ट ही नहीं आता सीरियसली। जो लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि इसका टेस्ट है, हाँ, कंपेरेटिवली आपको इसमें डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। आप जो कॉलीफ्लावर यहाँ से हार्वेस्ट करोगे, मतलब एक अलग रहेगा, लेकिन इतना भी मुझे डिफरेंस मुझे ऐसा नहीं दिखा अभी तक कि जो हमने बचपन में कभी कभी खाया था, जो है जो कुछ चीज़ें, उसका टेस्ट अभी तक याद है। तो इसका जो टेस्ट है ना, जब आपका सॉइल का इकोसिस्टम चेंज होता है, जो उसका स्ट्रेंथ अच्छा होता है, माइक्रोब्स अच्छे रहते हैं, CN रेशियो 1% प्लस हो जाएगा, तो सॉइल में आपकी इसमें न्यूट्रिशन भी आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो टेस्ट एंड न्यूट्रिशन दोनों चीज़ें ही मिलेंगी आपको। तो नेचुरल गार्डनिंग मतलब कहीं से भी मुझे फेल्ड मॉडल नहीं लगता ये। ओवर द टाइम, हाँ, बस थोड़ा सा स्लो चलेगा, और वो भी अगर एक बार सही हो गया तो उसके बाद आपको फास्ट भी चलेगा, राइट। बट हाँ, इनिशियली जो है आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आप सोच सकते हो कि हाँ थोड़ा सा स्लो है यार, तो शुरू में आप जो है उसके साथ ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते रहो। देखो, अगर नेचुरल गार्डनिंग कर रहे हो, मल्चिंग मल्चिंग कर रहे हो, तो इसमें बाहर से आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ला के डाल दिए या गोबर डाल दिए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, बट वही है कि आप ध्यान रखो, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में ये यूरिया DP ना डाल दे, तो वही चक्कर है, वही चैलेंज ही है एक्चुअली बड़ा, और पैसे खर्च हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं करना, नहीं करना है। हाँ, शुरू में आप जो है उसको थोड़ा सा एक अच्छे ऑथेंटिक सोर्स से स्टार्ट कर सकते हो, बट 6 महीने बाद तो आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि भाई हमको मार्केट से लेके आना पड़ता है, इसीलिए हम ये वो रे नहीं करना है। नेचुरल गार्डनिंग ही आपको सस्टेन करेगी, नहीं तो आपको परेशान ही होनी पड़ेगी। बस खाली यूट्यूब के लिए वीडियो बना लो एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू, नथिंग एल्स। इट वोंट बी काइंड ऑफ प्रोडक्टिव, स्केलेबल, राइट, दैट्स ऑल।